Hello students, welcome to our channel Bhakti Miss Chemistry Hub, and our today's topic is some basic concepts of chemistry. Okay, now again this chapter also we are going to divide in three parts. I mean three sessions में हम अपने इस chapter के पूरे topics को cover करेंगे. So in this part we are going to cover that is some physical quantities and their units, laws of chemical combination of gases, okay, and the mole concept, obviously introduction part. Fine, so let's start with the first topic, that is some physical quantities are here. Okay, उनके symbols हैं और units हैं, SI units और SI units के symbol. Okay, just have a look of this table. तो ये सारे वेल नोन और आपको ऑलरेडी पता है, राइट. ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड इंटेंसिटी, राइट. तो मास के लिए अगर आप सिंबल देखते हो कैपिटल एम एंड इट्स यूनिट, ओके, एसआई यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज किलोग्राम्स, एंड ऑब्वियसली उसका सिंबल है केजी. फाइन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज यूनिट के लिए, लेकिन अगर एसआई यूनिट मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है, तो आपको एसआई यूनिट ही मेंशन करना है, राइट, इन योर आंसर. लेंथ, दैट इज कैपिटल एल, ऑब्वियसली इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल एम. Temperature, that is capital T, and its unit is Kelvin, whose symbol is K. Next, time, obviously its symbol is T, and the unit we have, that is second. S is the symbol of your unit. Next, amount of substance. For this physical quantity, we have here letter small n to represent it, and its unit is mole. Okay, it's mole, and see the carefully its symbol MOL. So mole, the unit, it's having E, and symbol is without E. Fine. So अगर आपको symbol पूछते हैं as a objective, तो definitely make this sure कि MOLE नाम है unit का, SI unit का, and MOL symbol है. Next one, current. Obviously current के लिए we have the letter capital I, and its unit is ampere, whose symbol is capital A. And the last one is intensity, obviously I with the subscript V, okay, and candela is the unit of the intensity, and obviously CD we have the unit, I mean symbol of this unit. Okay, now so the next topic is what? Chemical combination, laws of chemical combination of gases. So let's have a look of that. That is laws of chemical combinations of gases. Okay, so in the laws of chemical combinations of gases, here total 5 laws you have. Okay, law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, then Gay-Lussac's law, and the fifth one is Avogadro's law. फाइन. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, नंबर 1 की स्टेटमेंट्स याद नहीं रहते, नंबर 2 स्टेटमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, डेफिनाइट का मल्टीपल को, मल्टीपल का डेफिनाइट को, एंड पॉइंट नंबर 3 बड़ा कंफ्यूजन, एग्जाम्पल. गेटिंग इट? तो गे-लुसैक्स का एग्जाम्पल चला जाता है एवोगाड्रोस को, एवोगाड्रोस का चला जाता है डेफिनाइट प्रोपोर्शन को. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन्स, यहाँ पे एकदम ट्रिकी वे से सिंपल फॉर्मेट में I have presented all the laws के statements as well as example. If you note one thing here कि सारे laws के लिए मैंने एक ही example रखा है, that is water. Reaction of water formation. Hydrogen plus oxygen gives water. So the common example for all the 5 laws. So यहाँ पे obviously example को लेके तो confusion होगा ही नहीं. Okay. So let's have a look of all the statements. Here we have all 5 that laws, statement and example. ठीक है. Here simplified form I have given. जनरली अगर आप बोर्ड्स में भी देखोगे तो लॉज के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एज पर द टेक्स्ट बुक होने चाहिए, एज पर द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. फाइन. सो इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट डेफिनेटली यू कैन राइट द एग्जाम्पल, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, ओके, एंड यू कैन एक्सप्रेस योर व्हाट वी कैन से भावनाएं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट. बट स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली इट्स सपोज टू इट मस्ट बी एज पर योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. फाइन. जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ओके, सो ऑलरेडी यू हैव हर्ड बिफोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, in which energy neither be created nor be destroyed but just can be converted from one form to another form. Yes or no? So that same way, just replace the word energy by mass. Fine. So here we have the statements, mass neither be created nor be destroyed,
in a whole chemical reaction. It means mass of the reactant exactly equal to the mass of the product, क्योंकि वो डिक्रीज भी नहीं होता और मास इंक्रीज भी नहीं होता. मतलब क्या कि पूरे केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होता है. दैट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फाइन. लेकिन ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट इन योर टेक्स्ट बुक? लेट्स हैव अ लुक. हियर वी गो. Law of conservation of mass. The law states that mass can neither be created nor destroyed. Okay, and in the explanation part you have this part, total mass of the reactant is equal to total mass of the product. And here example, as I said, for the all. Okay, so let's have a example over here. So as I said before, that is only one example for each law, that is hydrogen plus oxygen gives water. Okay, now here obviously we need to balance it. So if you see at the reactant part, दो oxygen atoms है, तो obviously product side भी दो oxygen atom होने चाहिए. So we'll write here 2. So we got here 2 oxygen atoms balanced both the sides, but our hydrogen atoms get disturbed. Hydrogen यहाँ पे हो गए 2 2 4, and here we have only 2 hydrogens. So what we'll do, we'll here write 2. ठीक है. So here we got the reaction, 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen and it gives you 2 moles of water. अब हमें प्रूव यही करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हाउ एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो कुछ नहीं करना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कंसीडर करो, कितना है 1 ग्राम, और टोटल हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको 4 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन 4 ग्राम. नेक्स्ट ऑक्सीजन, 1 एटॉम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है ऑब्वियसली 16 ग्राम. टोटल ऑक्सीजन आपके पास है 2 at reactant side, so 16 2s are 32 gram from oxygen. So 32 plus 4, obviously 36 gram. This is the mass of the reactants. Now mass of the product, molecular weight of water. How to calculate molecular weight? Obviously hydrogen, फिर से हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक वेट 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16. जस्ट सिंपली यू हैव टू ऐड एटॉमिक वेट्स. तो 2 1s are 2 plus 16, कितना हुआ 18, and 18 2s are 36 ग्राम. So see your product and your reactant, दोनों के masses exactly equal है, right? That's it. That is the law of conservation of mass. Now let's have the next one. Yes. Next one we have the law of definite proportion. Now here law of definite proportion बोला है. Definite means fixed. Getting it? Do not going to change irrespective of sources as well as irrespective of the method of preparation. मतलब ये है definite proportion का कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का proportion है वेट का, मास का, गेटिंग इट, वो फिक्स रहेगा. भले आप वो कंपाउंड अलग अलग सोर्सेस से उठा लो या वो कंपाउंड आप डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करो, गेटिंग इट, तो भी उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उनका बाय मास जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है बाय मास, वो फिक्स रहेगा. इज दैट क्लियर? सो सेम दैट लॉ का स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पे. yes, here we go. Law of definite proportion. So here you'll get the actual, or we can say your textual statement. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Okay, means आपका जो compound है, any given compound. So as I said, I have taken example of water in every case, in every law. So let's have example of water only. So in the water, okay, अगर आप हाइड्रोजन का proportion देखोगे, so that is 11.2%. एंड ऑक्सीजन का प्रपोर्शन अगर देखते हो बाय वेट तो वो है 88.8%. फाइन. सो ये जो प्रपोर्शन है ये फिक्स रहेगा, भले ये वाटर आप सी वाटर हो, भले ये आपका वाटर सैंपल टैप वाटर हो, भले ये आपका वाटर सैंपल वेल वाटर हो, गेटिंग इट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस, यहाँ पे सोर्सेस डजंट मैटर आप कहाँ से वो वाटर सैंपल कलेक्ट कर रहे हो. पॉइंट ये है कि आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
बाय वेट जो प्रोपोर्शन है दैट इज गोइंग टू रिमेन्स फिक्स्ड और डेफिनाइट, ये हो गया डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है कि नेचुरली ऑब्टेन्ड हो या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो, उसमें कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो है बाय वेट वो फिक्स रहेगा। गेटिंग इट? तो आप वो भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड टू मेक योर थिंग सिंपल मैंने सारी जगह वाटर का एग्जांपल दिया है। तो एक्सप्लेनेशन अगर आता है, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन XYZ लॉ, so obviously for the 1 mark and most probably this question asks for the 2 marks, so obviously for the 1 mark statement and for the another 1 mark you're supposed to write example with explanation. Okay, so explanation में definitely we can write this thing, that is definite composition or proportion by mass always fixed. यही इसका मीनिंग है कि बाय वेट उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ सोर्सेस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। गेटिंग इट? दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, नाउ एज आई सेड बिफोर कि नाम की भावनाओं को समझो। प्रीवियस केस में डेफिनाइट प्रोपोर्शन था, फिक्स प्रोपोर्शन, भले आप सोर्सेस अलग लो, आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट लो, बट proportion is always remains fixed by weight, right? But here multiple proportion, तो obviously नाम से ही suggest होता है कि यहाँ पे by weight जो है proportion जो है वो definitely different होगा, multiple होगा। Now let's see the statement first। आपका जो पूरा जो statement है यहाँ पे law of multiple proportion का, so the very first part of the statement, when two elements form more than one compound, ओके अब यहाँ पे ऑब्वियस है, हमने एग्जांपल वाटर लिया है तो एलिमेंट्स भी अपने कॉमन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स लिए मैंने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंबाइन होंगे एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके दो कंपाउंड बना रहे हैं हम यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज वाटर and the second one is hydrogen peroxide. Okay, hydrogen oxygen combines together and we are getting two different compounds, one is water and other one is hydrogen peroxide. Fine. Second part of the statement, the masses of the element, okay, B that combined with a given mass of A. So let's see what does it mean exactly कि यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स कंबाइन होके मोर देन टू कंपाउंड मिले, वाटर एंड H2O2, उसमें हाइड्रोजन का मास है फिक्स, जैसे कि 2 ग्राम्स एंड 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन का मास है वेरी हो रहा है, ऑक्सीजन इन वाटर 16 ग्राम एंड इन द पेरोक्साइड इट्स 32 ग्राम। तो ये 16 एंड 32 ये जो वेरिएबल मासेस है इनका अगर हम रेशियो लेते हैं, सो 16:32 एंड द होल स्मॉलेस्ट नंबर अगर रेशियो लेते हैं दैट कम्स व्हाट, 1:2. Fine. This is exactly law of multiple proportion. That is, when two elements combines together, okay, they can form more than one compound. Suppose यहाँ पे example में जैसे लिया है one and water and other one is peroxide. Then one of the element having fixed mass and other element having variable mass. Variable masses का if you take the ratio, तो वो ratio आपको मिलेगा simple whole number ratio. That's it. Okay. Let's have the next law. Gay-Lussac's law. Okay, so Gay-Lussac's law, here we have the statement, when gases combines or they produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperatures and pressures. Means what? गैस के 3 मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपको ये जो 2 वेरिएबल चीजें हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, उसे कांस्टेंट रखना है। इफ यू वांट टू फोकस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, फिक्स रखोगे। अगर आपको टेम्परेचर पे फोकस करना है देन ऑब्वियसली प्रेशर एंड वॉल्यूम को फिक्स रखोगे। तो वैसे यहाँ पे दिस इज Gay-Lussac's लॉ, इट्स रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ऑब्वियस है व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट or same. Getting it? That is the third part of your statement. Again, this statement also I have divided into 3 parts. Okay, the last part is that only कि you have to maintain the temperature and pressure same. It means constant. ठीक है, तो हमने pressure और temperature को रखा constant.
सो व्हाट एग्जैक्टली द मेजर पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि आप गैसेस को कंबाइन करो या प्रोड्यूस करो, ओके वो ऑलवेज आपको मिलेंगे इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑफ ऑल गैसेस, ऐसे नहीं कि कोई दो गैसेस लिया है और तीसरे को कंसिडर नहीं किया, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस, फाइन. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? I repeat, that is when you combine या produce any gases in a chemical reaction, they always you will get in a simple ratio by volume. Fine. Provided all gases, not only one or two. जितने आपने लिए हैं, जितने combine या produce किए, all that gases they you will get in a simple ratio by volume. Fine. हाँ, but one thing you have to keep constant, that is pressure and the temperature. Fine. That's why तीनों parts को अगर हम merge करते तो statement ये है, that is when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases at same temperature and the pressure. ठीक है? So this is all about your Gay-Lussac's law. Now let's see its example. एग्जाम्पल के लिए एज आई सेड बिफोर कि मैंने सिर्फ वाटर ही कंसिडर किया है एवरीवेयर, ठीक है. तो हियर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर, सेम इक्वेशन, बैलेंस करते हैं उसे. वी शुड हैव हियर 2 moles ऑफ वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हो जाएंगे 2. नाउ हियर अगर आप कंसिडर करते हो कि एग्जैक्टली इसका प्रपोर्शन कैसे लिया है बाय वॉल्यूम, तो वी हैव टेकन 2 वॉल्यूम ऑफ योर हाइड्रोजन. यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इज कंसिडर एज ए 1. So 1 volume of your oxygen, and obviously in the product side what you are getting 2 volume of water, right? तो अगर अभी इन वॉल्यूम्स का हम रेशियो ले तो what ratio we'll get here? Simple roll number ratio 2:1:2. That's it. Getting it? This ratio we are getting 2:1:2. So that is all about the Gay-Lussac's law. Let's have the next one, that is Avogadro's law. Okay. Now here, Avogadro's law, here again, it's talking about the volume. So obvious है, remaining 2 measurable properties of gases like pressure and temperature. आपको क्या रखना है यहाँ पे? Again constant रखना है, same रखना है. Fine. तो यहाँ पे as per the Avogadro's law, कि equal volumes of all gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure. Means equal volume is equal to equal number of molecules. ये आप relation याद रखो. स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो, क्योंकि पहली बात तो स्टेटमेंट की आपको ये बताई गई है कि ऑब्वियसली वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो, दोनों लॉ में, Gay-Lussac's लॉ एज वेल एज एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, राइट. अब रिमेनिंग पार्ट पे लॉ के फोकस करते हैं, वो है कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन. जितना वॉल्यूम उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट. सो दैट्स व्हाई दे हैव given here statement, equal volumes of all gases contains equal number of molecules at same temperature and the pressure, right? So volume is equal to number of molecules, that's it. The simple thing आपको याद रखना है, आप statement खुद से लिख सकते हो. So volume is equal to number of molecules. So here example again we have taken, as I said before, water का ही. So here we have 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen gives 2 moles of water. तो volume कितना है यहाँ पे? 2 volume of hydrogen, 1 volume of oxygen and 2 volumes of water. जितना volume उतने ही number of molecules. तो यहाँ पे simply हम लिखेंगे 2 number of molecules, here 1 number of molecule and here again 2 number of molecules, right? That's it. That is about the Avogadro's law. Fine. It's a very simple law of conservation of mass and Avogadro's law are the simplest one among all these 5 laws. Fine. Now let's have next one is the mole concept. In the mole concept, first of all we should know about what is exactly mole. Let's have an example. If I say I want 1 dozen potato, तो obviously आप मुझे 12 pieces of potato लाके दोगे, right? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूएस में जाओगे तो भी 1 डजन मतलब 12 पीसेस ही मिलेंगे, yes or no? मतलब आपको डजन
जो क्वांटिटी है उसने क्या बताया, नंबर ऑफ पीसेस, 1 डजन मतलब 12 पीस होने चाहिए, यस और नो। तो द 1 डजन क्वांटिटी आपको नंबर ऑफ पीसेस तो बता सकती है, लेकिन फिक्स मास बता सकते हैं कि 1 डजन पोटैटो मतलब इतना ही फिक्स मास रहेगा, नो। वो साइज वाइज वेरी होगा, छोटे हैं तो ऑब्वियसली 1 to 1.5 kg, अगर मीडियम है साइज में तो अराउंड 2 to 2.5 kg तक जाएगा, या अगर 1 डजन बड़े बड़े पोटैटोज है तो ऑलमोस्ट वो 3 to 3.5 या 4 kg तक जाएगा, राइट। सो फिक्स मास नहीं है, साइज वाइज वेरी हो रहा है, यस और नो। लेकिन मोल इतनी यूनिक है कि आप फिक्स मास या फिक्स वॉल्यूम बता सकते हो। जैसे कि इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मैं आपको फिक्स बता सकती हूँ मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहेंगे। 1 मोल कार्बन एटम मीन्स number of carbon atoms will be 6.022 into 10 raised to 23 कार्बन एटम्स है। आई कैन टेल यू फिक्स मास, मेरे पास कितना मास होगा टोटल कार्बन का, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 ग्राम। आई कैन टेल यू फिक्स वॉल्यूम कितने मेरे पास है कार्बन एटम का, टोटल वॉल्यूम दैट इज ऑलवेज फिक्स 22.4 liters। Is that clear? So mole is very unique quantity. See, it's giving me perfect and fixed information about number of pieces, I mean particles, mass and volume. Fine. So, so let's have first of all relation of 1 mole of any substance with the number of particles, 1 mole of substance with the mass and 1 mole of substance with the volume. जैसे मैंने अभी कार्बन के लिए बताया. See the relation. Always remember 1 mole of any substance. अगर मैंने आपको बोला कि मैंने 1 mole of chocolates दिए तो भी वैल्यू फिक्स रहेगी. That is what 6.022 into 10 raised to 23. That is only your Avogadro's number. Okay. 1 mole of CO2 molecules. कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole of potatoes. कितने पोटैटोज रहेंगे 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole of nitrogen atoms. कितने नाइट्रोजन एटम्स रहेंगे 6.022 into 10 raised to 23. So 1 mole of any substance obviously उसकी क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ पीसेस जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज रिमेन्स फिक्स्ड, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23. ठीक है, जैसे 1 डजन हमेशा 12 ही होते हैं, वैसे 1 मोल मीन्स हमेशा 6.022 into 10 raised to 23 होंगे. नेक्स्ट वन, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स मास. अब मास एग्जैक्टली कितना होगा, तो अगर आपका सब्सटेंस एटम है तो उसके एटॉमिक वेट जितना, और अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना. गेटिंग है. तो यहाँ पे वॉल्यूम मास के लिए हमेशा फिक्स वैल्यू है अपने पास कि कोई भी सब्सटेंस आपको 1 मोल दिया है तो उसका मास कितना रहेगा, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट जितना, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट जितना. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, I have 1 mole of मीथेन मॉलिक्यूल्स, राइट. तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है, कार्बन इज 12 ग्राम्स एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन 1 ग्राम, टोटल हाइड्रोजन है 4, सो 12 और 4 1s are 4, सो 12 plus 4 is 16 ग्राम. तो ऑब्वियस है अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स है तो कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे 6.022 into 10 raised to 23. कितना मास रहेगा, ये मॉलिक्यूल है मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना 16 ग्राम. अब कितना वॉल्यूम रहेगा, अगेन फिक्स, जैसे पार्टिकल्स इतने रहेंगे वैसे वॉल्यूम भी हमेशा कितना रहेगा 22.4 लीटर्स. कितना होगा वॉल्यूम हमेशा 22.4 dm क्यूब, I mean decimeter cube, or you can say liter, one and the same thing. Fine. So 1 mole means particles कितने 6.022 into 10 raised to 23. मास कितना इक्वल टू एटॉमिक वेट इफ इट इज एटम, अगर वो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस तो मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम कितना रहेगा अगेन फिक्स, दैट इज 22.4 लीटर्स. फाइन. नाउ लेट्स हैव अ definition. Now definition of mole. Okay, so 1 mole is the amount of substance. Listen carefully. 1 mole means exactly क्या है, it's the amount of substance. आपने देखा ना amount of substance को हम कौन से यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल. तो ये 1 mole is amount of substance that contains particle as there are the atoms in the 12 grams
of the carbon 12 isotope. आपको पता है कार्बन के आइसोटोप्स है 12, कार्बन विथ 13, कार्बन विथ 14, यस और नो. तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको कंसिडर करना है आइसोटोप कार्बन 12, मतलब जिसका मास है 12 ग्राम्स. अब 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स, उतना 1 मोल में पार्टिकल्स. तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 ग्राम, मतलब वो डेफिनेटली है 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23. मीन्स इन शॉर्ट इनको यही बोलना है कि 1 मोल मीन्स व्हाट, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. दैट क्लियर? नाउ molar mass and molar volume, this two terms also you have in this concept. So molar mass नाम से ही पता चलता है, the mass of 1 mole of substance. Similarly molar volume क्या होगा, the volume of 1 mole of substance, और वो हमेशा कितना होता है, the fixed value 22.4 liters. Getting it? I repeat, what is molar mass? Mass of 1 mole of substance. What is molar volume? Mass volume of 1 mole substance. तो वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल सब्सटेंस का, फिक्स वैल्यू 22.4 liters. Okay. Now the next thing is what? Here, calculate the molecular weight. The next concept is calculate the molecular weight. So this way we got a relation. I repeat, 1 mole substance मतलब कितना particles, 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर जितना. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट जितना, अगर वो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस तो मॉलिक्यूलर वेट जितना, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मींस वॉल्यूम कितना, सो 22.4 लीटर्स. ओके, फिक्स वैल्यू. तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव न्यूमेरिकल्स. ओके, और ये बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है. बट बिफोर दैट हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अपने नेक्स्ट पार्ट में विल सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट. So here we have some examples. Okay, question is calculate molecular weight of the following compounds. Atomic weights provided रहेंगे, लेकिन आपको पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एंट्रेंस में डेफिनेटली आपको प्रोवाइड नहीं होते. तो मीथेन, सो मीथेन मॉलिक्यूल फर्स्ट एग्जांपल. तो ऑब्वियस है कार्बन, ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि कार्बन का वेट होता है, एटम का एटॉमिक वेट 12 ग्राम्स. So here carbon is 12 grams. Hydrogen we have 1 gram, total 4 hydrogen. So 1 into 4. So obviously 12 plus 4, that is 16 gram. Then water we have here. Hydrogen, atomic weight 1 gram into 2 plus oxygen we have 16 gram atomic weight. So 16 plus 2, that is 18 gram. Similarly you can calculate for the sulfuric acid. कितना है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, सॉरी 1 सल्फर एटम है एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स है. तो हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन एज यू नो 16 ग्राम. So 16 4s are 64 and this 34. So total is 98 gram. So next one, ammonia. Ammonia here we have 1 nitrogen and 3 hydrogen, right? Nitrogen का कितना मास है 14 ग्राम and hydrogen आपको पता है 1 ग्राम. So 14 plus 3 1s are 3, that is 17 gram. ठीक है. And last one is the carbon dioxide. Carbon is 12 gram. Oxygen 16, 16 2s are 32 grams. So total answer is 44 gram. So this way you can calculate molecular weight. तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू.